Assalamu class, welcome to week number 6. In this chapter, validation and negotiation. Previously we discussed about reviewing techniques for validation. Let's continue the lecture and we will discuss here the prospective based reading. Earlier I gave you the brief introduction to prospective based reading. This week we will understand the prospective based reading, which is a validation technique, and we will further the discussion on validations, and in the end we will talk about negotiations. So let's start the lecture. Prospective based reading. This phase validates the requirements by adopting different prospects. So we have different prospects, which are only 3. We apply this technique in combination with the previous reviewing techniques. So this technique can be used with a review focusing on a particular prospect which lead to improved results. So by using the combination of prospect based reading with the reviews, we can improve results. The possible prospects are as following, which is user or customer perspective, software architect perspective, and the tester prospect. So let's move on and let's check out the user and customer prospect. So in this technique, requirements are checked with the perspective of a customer. The goal is to determine whether they describe the desired functions and qualities of the system. Secondly, software architecture prospects. Requirements are checked by keeping a view of prospect of the software architect. Goals are to ascertain if they contain all necessary information for architectural design. For example, if all relevant performance perspectives have been described, like user satisfaction, average response time, request rate, application and server CPUs, application availability, processor use, and memory use. Last, we have tester prospect. The requirements are checked with the prospect of a tester. The goal is to check requirements contain the information to derive test cases. So let's talk about a little bit about test cases. Next slide will discuss test cases. A test case is a set of conditions or variables under which a tester will determine whether a system under test satisfies requirements or works correctly. The process of developing test cases can also help find problems in the requirements or design of an application. If you want to know more about the test cases, you may study the link which is provided here. Next, we will see prospective quality aspects. Let's check them out. This perspective helps attain the quality and requirement documents. Content perspective. The auditor verifies requirements and focuses on the quality of the content. Documentation perspective. The auditor ensures that all the documentation guidelines for requirements and documents have been met. Agreement requirement. The auditor checks if all stakeholders agree on the requirements and conflicts has been resolved, if there are any. Similarly, further prospects may be created, which may validate other contents with respect to quality of the requirements. So next we will discuss about the directives of each prospect. What are the things that are important to carry out the validations? So the validation directive for each prospect is assigned to each auditor to read and validate requirements. Detailed instructions are defined to each auditor because they might not know the prospective details. So we need to provide them some instructions, which is either in a form of pamphlet, or you give them instructions verbally or by using any video. The given content of the validation need to have questions assigned with the prospect that must be answered. We can also use checklist that summarizes the content to be validated. We'll discuss the checklists later, which are very important for validations. Directives of validation also suggest number 1, which is called follow-up. The results are analyzed and consolidated. It has answers and issues that an auditor has identified. Consolidation of the result is done in groups. So what happens in consolidation is that all the auditors, they note down the errors and later they sit together as a team and they discuss the errors and list them down. So listing is basically consolidation. Support of other techniques. It can use independently or as a support technique for inspection or review by prospective based reading. So let's talk about validation through prototypes. This is an effective method to identify errors. So what we do here, we prepare a prototype
The prototypes allow auditors to experience the requirements and to try them out. Stakeholders try out prototype which is given to them, compare how they perceive the system should be implemented with the prototype at hand. So how they perceive the system and how the actual thing has been implemented using prototype, they check and they compare. Find differences between their ideas and the prototype implementation. So it means that what our auditor actually thinks about the project when he heard about the project and he learned about the project, and how the prototype actually which is being implemented, which is a part of the project, not a whole project, which is a part of project, how it is being implemented, and then compare their idea with the implemented prototype. So let's move on. Let's see what type of prototypes we got for the project. Depending on the further use the prototypes or not, one can distinguish prototypes as following. We have throwaway type of prototypes and we have evolutionary type of prototypes. Throwaway prototypes are not maintained once they have been used, so they are only as like a dummy, that we don't work on them further to enhance them to make it a part of project. Whereas the evolutionary prototypes are developed with the goal to be developed further and improve in later steps. Their implementation plays a much more significant role. Therefore, the effort to create evolutionary prototype is much higher. So they are recommended. If you are developing a prototype, then you should work on evolutionary type of prototypes, which becomes a part of the project later after validations. Next is selecting of relevant requirements. So if you're using an evolutionary type of prototype, we should select the relevant requirements that need development. It means only particular requirements are selected. These set of requirements to be validated are kept limited for development resources, that is the time and money, that can be allocated for validation. So we don't build the whole project based on the prototype, but we actually implement some function, some part of the project as a prototype, just to show how how it will work. One example of selection requirement criteria can be the criticality. So if we understand the critical type of requirements, we can build a prototype only for critical type of requirements, which, if you remember, we identified in use cases. Preparation of the validation. Following preparation has to be made for validations. Number one is manual instructions. The manual or instructions, the user of the prototype must be given necessary information by means of a manual or proper instructions, as told earlier, maybe a videos or maybe verbally giving them instructions what to do. Validation scenario that user of a prototype can perform on prototype should be prepared, like all relevant datasets or user interactions. So for datasets or for user interactions, we built our validation scenarios. So checklist with the validation criteria is very important. A checklist of validation criteria should be created to validate prototype. We'll discuss how the checklists work later. Performing validations. The auditor should validate the prototype without being influenced. That means he should not be biased. He should be independent. What he is saying, how he is writing the errors, and how he thinks that the prototype will be beneficial for the project or what information it holds. He executes the validation scenarios independently. This ensures that validation results are not biased. Once the experimental scenarios are done, the author can play with the prototype to explore its further functionality, which may be helpful identifying remained hidden errors. So one thing which is very important for auditor is to go through the experimental scenario, and afterwards he can play with the prototype to find further errors if they are not listed in the checklist type thing. For experiment to be conducted successfully, scope of the prototype should be defined to auditor. That is the set of requirements considered for development, why we considered to develop the prototype, and what is our goal that we need to show by using a prototype or by developing a prototype. In the absence of such information, an auditor cannot decide whether an identified error can be traced back to a missing requirement or if the requirement has been consciously omitted in the prototype.
तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक प्रोटोटाइप बनाया हो जिसके अंदर आपने सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड ना किया हो। तो इट इज़ पॉसिबल कि जी आप उनको वहाँ पे इन सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में ब्रीफ करें कि जिस प्रोटोटाइप के अंदर हमने ये चीज़ को गोल रख के बना के दिखाने की कोशिश की है जी कि इस चीज़ को हम इस तरह कैटर करेंगे या इस तरह हम इन एरर्स को सॉल्व करेंगे, या दिस इज़ द आइडिया दैट वी हैव कि जो प्रोटोटाइप इस तरह का होना चाहिए, और ताकि वो जिसके अंदर हमारे पास ईज़ ऑफ यूज़ या फ्रेंडलीनेस विद द इन्वायरमेंट या यूज़र के लिए आसानी जो है वो देखी गई थी, तो डेवलप किया गया है प्रोटोटाइप। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वैलिडेशन रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स जो हमारे पास आते हैं उनको हम किस तरह वैलिडेट करके डॉक्यूमेंट करते हैं। Prototype validates permits two type of documentation. The one, we need to document protocol of the auditor. The auditor documents the result and experience by means of validation scenarios and checklists provided. So the auditor goes through the scenarios and he answers the questions which are in the checklist. Second thing, what we can do is we can implement this type of validation technique as well for prototype, which is basically observation protocol. It involves a second person observing the auditor. Observe with some protocol. There has to be some protocol for observation if a person is observing auditor. Helpful in identifying additional errors, like if auditor hesitates in finding an option on interface, this indicates an impairment of understandability. मतलब है कि एक चीज़ एक इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा था आपका ऑडिटर और उसको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही इंटरफेस के ऊपर, तो ये एक तरह का इंडिकेट करता है कि जी उसमें कोई कमी है अंडरस्टैंडेबिलिटी में, जो कि ऑडिटर को ने फेस की और उस वजह से उसको काम करने में मुश्किल हुई. It is advised to record the validation using video, which is helpful in follow-up and can be investigated like ergonomics और initiative use of interface. तो investigate कर सकते हैं इसमें हमें कि ergonomics के लिहाज से कोई नुकसान तो नहीं है जिस तरह हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. एज अ ergonomics बेसिकली ह्यूमन हेल्थ से ताल्लुक़ होता है उसका. इनिशिएटिव यूज़ ऑफ यूज़र इंटरफेस, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इंटरफेस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप लोगों को क्या इनिशिएटिव है, क्यों इस तरह बनाया गया है, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम उसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं लेटर ऑन. लेट्स मूव टू एनालिसिस एंड लेट्स सी वैलिडेशन के एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं हम लोग. द रिजल्ट्स ऑफ द वैलिडेशन आर एनालाइज्ड आफ्टर वैलिडेशन इज कंप्लीट. जब वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी, सब चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाएंगी एरर्स वगैरह, तो फिर आप उसको एनालाइज करेंगे. चेंजेस सजेशंस फॉर द रिक्वायरमेंट्स आर कंसल्टेटेड. जो सजेशंस दी जाती हैं ऑडिटर्स की, चाहे वो 2 ऑडिटर थे, 3 ऑडिटर्स थे, जिनको हम रिव्यूअर भी बोलते हैं, तो वो आप लोग एक पेज पे लिख लेते हैं. If significant changes to the requirements are necessary, it may be advised to revise the prototype and validate again. तो अगर उसमें इन्होंने इस तरह की एरर्स निकाल दी हैं जिसकी वजह से आपको उसको रीवैलिडेट करना पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी है जी कि आपको प्रोटोटाइप दोबारा बनाना पड़ जाए और फिर उस प्रोटोटाइप को दोबारा वैलिडेट करना पड़ जाएगा ऑडिटर्स को बुला के, विच इज़ बेसिकली फॉलो अप आफ्टर द एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, और फिर एनालिसिस की बेस के ऊपर दोबारा उसको आप लोग वैलिडेट करवाते हैं. So very important part coming up, which is checklist. So let's move on to checklist. Checklist must define every single question or statement. जो आप डिज़ायर करते हैं ऑडिटर से, वो सारी क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स उसमें लिखी होनी है चाहिए आप लोगों को, ताकि आप वो ऑडिटर्स को दें और वो ऑडिटर्स जो हैं वो चेकलिस्ट को देख के चीज़ों को वैलिडेट करेंगे और क्वेश्चंस कहाँ से देंगे. The source of question and statements in the following list can be used to create checklist for validation. तो checklist में क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह के questions होंगे. Let's see. The three quality aspects of requirements. 3 quality aspects डाले जाएंगे उसके अंदर. Principle of requirement validation. कोई principles होंगे जो हमने पीछे 6 principles पढ़े थे, उनमें से कोई principle आप लोग यूज़ करेंगे. Quality criteria for requirement documents. Quality criteria for individual requirements. Experience of the auditor from prior projects देखा जाएगा कि जी पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया होगा, तो ये चेकलिस्ट के होना चाहिए. एरर स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे उस चेकलिस्ट के थ्रू. सो चेकलिस्ट जो है वो किस तरह बनती हैं, उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेट्स चेक आउट. सो इम्प्रूविंग चेकलिस्ट आर नॉट नेसेसरी कंप्लीट. A checklist should be improved timely for future use. If a question was forgotten, the checklist should be amended to contain the extra question. So previously if you have forgotten to ask any question, तो आप उसमें वो क्वेश्चन अमेंड करके रख सकते हैं अपने पास, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो क्वेश्चंस पूछें उनसे.
एम्बिगुअस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दैट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल मस्ट बी मार्क्ड एंड रिवाइज्ड। अगर आपका ऑडिटर ने किसी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि उसको समझ नहीं आई, तो आपको उसको बेहतर करना पड़ेगा। आउटडेटेड और नो लॉन्गर वैलिड क्वेश्चन शुड बी रिमूव्ड। और आपकी अगर चेक लिस्ट है उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आउटडेट हो चुके हैं, तो उनको निकाला जाए ताकि चेक लिस्ट को आप लोग बरकरार रख सकें और उसको अपडेटेड रख सकें। सो लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट द रिव्यू टेम्पलेट। हमारे पास एक रिव्यू टेम्पलेट है चेकलिस्ट का। वो चेकलिस्ट का टेम्पलेट देखते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या है वो और किस तरह वो चेकलिस्ट काम आती है हमारे पास वैलिडेट करने में। ओके, लेट्स चेक आउट टेम्पलेट। सो नाउ वी हैव अ रिव्यू ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग देखते हैं जी के टाइटल क्या है, ऑथर कौन था, उसका रिव्यू टारगेट्स क्या रखे गए थे, मीटिंग इन्फॉर्मेशन, जो मीटिंग रखी गई थी उसकी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है वहाँ पे, पार्टिसिपेंट्स कौन थे, रोल्स क्या थे उसमें, इंस्पेक्टर कौन था, मिस्टर जैसा इसमें लिखा हुआ है मिस्टर ए ब्राउन जो है वो इंस्पेक्टर थे। रिव्यू रिजल्ट्स यहाँ रखे जाते हैं, इसमें आप लोग देखते हैं एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया, चेंजेस एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, रिजेक्ट हुई कि नहीं हुई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली जाती है। मे बी इसमें आप फॉलो अप कर रहे हो तो यहाँ पे दोबारा फिर वो लिखा जा सकता है कि एक्सेप्ट किया बाद में कि नहीं किया। ओवरऑल प्रिपरेशन इज़ अबाउट 2 आवर्स टाइम दिया जाता है। रिव्यू फाइंडिंग्स पे देखें जी, हमारे पास टाइप है गुड, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, ओपन इश्यूज हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिव्यूअर होते हैं वो फिर उसके ऊपर टाइप उसकी डिफ़ाइन करते हैं क्वेश्चंस के आगे, कमेंट्स क्या दिए गए हैं उसके। जिस तरह यहाँ पे लिखा है जी, यूज़र केस डायग्राम्स दी गई थी उनके ऊपर, उन्होंने उसको बैठ के वैलिडेट किया कि जी यूज़ केस जो बनाए हैं आपने वो वैलिडेटेड, वो कितने बेहतर हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं आपके रिव्यूअर्स ने, वो दीज दोज कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो all question need to be answered with yes, otherwise document a finding in the review list। तो अगर आपने सारे जवाब चीज़ों के जवाब yes नहीं दिए तो आप लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं रिव्यू लिस्ट के अंदर एक लिख के देंगे आप लोग। तो दीज आर द क्वेश्चंस। यूज़ केस टाइटल सही था कि नहीं था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सही थी, प्राइमरी एक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ठीक थी, प्री रिक्विजिट्स, पोस्ट कंडीशंस, प्राइमरी पाथ वगैरह जो दी गई थी क्या वो ठीक थे कि नहीं थे। इफ़ द आंसर हैज़ टू बी येस, अगर या आंसर सही नहीं है आपका येस नहीं है तो देन यू नीड टू डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू डू इट। सो ऑल क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड विद येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास फॉर एवरी स्टेप के लिए पास फर्दर क्वेश्चंस हैं। अल्टरनेट पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, ओवरऑल यूज़ ऑफ द यूज़ केस, ओवरऑल व्यू ऑफ द यूज़ केस भी दिया गया, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आर देयर, यू नीड टू आंसर देम, otherwise you need to list them in the review list. All right, this is how you do checklist. Okay, checklist as a guidelines. So checklists are used as a guidelines. It helps you support requirement validation in many ways. It can serve as a guideline for the auditor. The auditor को help करती है during a review. Checklist as a means of structure. Structure देती है आप लोगों की जो आप लोग काम कर रहे हैं, ना कि आप लोग आगे पीछे घूम रहे हो कि जी क्या था क्या नहीं था, आगे क्या था पीछे क्या था. Gives you a structure. Checklist as a means of structure. A checklist can define a list of questions that must be answered. So एक आप लोगों की स्ट्रक्चर है, सिस्टमेटिकली आप लोग उसको लेके चलते हैं स्ट्रक्चर की शक्ल लेके देकर. Checklists serve as a measure to approach the validation in a structured manner, which guarantees that every auditor validates the requirements and the results are more comparable. Hybrid form of checklist applications are also possible, which contain obligatory questions for prospective based reading and can contain suggestions that the auditors may or may not follow. तो उसके अंदर जो हाइब्रिड टाइप होती हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चेकलिस्ट के अंदर होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो चेकलिस्ट टाइप नहीं भी होती। तो उसमें फिर आप लोगों के जो ऑडिटर्स होते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं एज़ पर जो वो फील करते हैं एरर्स के बारे में या वैलिडेशंस के बारे में. So how we can apply the checklist? Let's check that out. Successful application of checklist for requirement validation depends upon the manageability and the complexity. तो आप उनको मैनेज कितना करेंगे और कितना कॉम्प्लेक्स रखना है आपने चेकलिस्ट को, ये बहुत मैटर करता है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू यूज़. अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके अंदर तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप लोगों के जो ऑडिटर होते हैं दे हैव टू मूव इन बिटवीन द पेजेस
to answer the questions and to remember the questions. So it is advised कि जी के आप लोगों की जो checklist है should not be more than one page, single page होनी चाहिए ताकि उनको एक पेज पे चीज़ें नज़र आ रही हों. In addition, questions should be focused rather than general in checklist. तो ज़्यादा focus question होने चाहिए, general questions नहीं पूछने उसमें, ताकि वो उसका जवाब yes और no में दे सके. अगर no है तो फिर आपको you remember you need to write it in the review document. So this is how the checklist help you in validating. Next, we will talk about how we can negotiate the requirements if there are any conflicts between the stakeholders or in between the requirements as well. So let's check out the requirement negotiation. System development requires the conflict to be resolved. तो development अगर आप करना चाहते हैं, if you want to move further, तो resolve करनी पड़ेंगी आप लोगों को conflicts. Requirement engineer can resolve conflicts by doing 4 tasks. 4 tasks आपके पास हैं that you need to perform. Conflict identification, पहले identify करना, ढूंढना कि जी conflict आ क्यों रहा है. Second is conflict analysis, उनको analyze करना कि इनको हम लोग किस तरह resolve करवा सकते हैं, which is third part, resolution. फोर्थ इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. तो चौथा जो होता है वो आप लोगों का जो आप लोगों ने रिजॉल्व करवाया होता है उसको आप लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, उस पर स्टेक होल्डर सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं ताकि वो एग्री करें कि हाँ जी वी आर ऑन सेम पेज और हम निगोशिएट करते हैं किसी एक रिक्वायरमेंट के ऊपर या किसी जो भी सोल्यूशन है उसकी बेस पे हम लोग निगोशिएट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट पार्ट, conflicts can arise during all requirement engineering activities. For example, different stakeholders can provide contradicting requirements during elicitation. तो अगर आप लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होंगे तो कोई ना कोई इसमें ऐसी बात कर देगा जो कि आपकी बेसिकली कॉन्ट्रडिक्ट करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ. तो आपस में स्टेक होल्डर्स की बातें ऐसी हो सकती हैं. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक्टिविटी है. उनको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स आर ऑफन नॉट ऑब्वियस ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. कभी कभी वो चीज़ें इतनी साफ नज़र नहीं आ रही होती जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है या आ जाएगा. During the entire requirement engineering process, the requirement engineer should pay attention to potential conflicts so that they can be identified, analyzed, and resolved earlier on. So, being a software engineer, you need to understand कि जो requirements gather कर रहे हैं आप लोग और जिन जिन लोगों से gather की हैं आप लोगों ने उसमें अथॉरिटीज़ कौन सी हैं और उन्होंने क्या बात की है और आपके उनके जो जूनियर्स थे अगर उन्होंने कोई इलिसिट करवाई हैं रिक्वायरमेंट्स तो उनकी बातों में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे और वो आगे आप ही के लिए मसले बनेंगे. तो उनको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रिजॉल्व करना आप लोगों का काम है. सो लेट्स मूव ऑन टॉक अबाउट एनालिसिस. एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स की. तो उसके लिए हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट टाइप. रीज़न मस्ट बी आइडेंटिफाइड. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि रीज़न की जी कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है, क्यों आ सकता है. Different type of conflicts exist. Number one is data conflict, conflict of interest, conflict of value, relation conflict, structural conflict, or mixed reason of conflict. So let's talk about the first one, which is data conflict. Data conflict क्या होता है, क्यों आता है? Let's check it out. Data conflict is characterized by defect of information, false information, या different interpretation of some information. तो हो सकता है कि जी stakeholders when they based on the stakeholders experience हो सकता है जी कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो डिफेक्टेड हो या वो गलत हो सकती है या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती, चेंज होगी. कुछ लोग उसको किसी तरह समझते होंगे, कुछ चीज़ें उसको किसी और तरह इंटरप्रेट करते होंगे कुछ स्टेक होल्डर्स आपके. So like a stakeholder may consider 1 second delay to be too less and others may consider it to be a ample delay. इस तरह कॉन्फ्लिक्ट में भी इंटरफेस पे आ सकता है व्हेन यू आर लाइक प्रोसेसिंग समथिंग. यूज़र ने कुछ चीज़ क्लिक की है तो वन डिले के प्रोसेस के ऊपर कुछ शो करना है कि नहीं करना है. तो मे बी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपके स्टेक होल्डर्स में आ सकते हैं जी कि नहीं वी प्रॉब्ली शो दैम एन आवर ग्लास जो घूम रहा होता है या कोई चीज़ घूमती हुई इंटरफेस में नज़र आनी चाहिए, जबकि मे बी अदर स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं जी कि नहीं इट्स एम्पल अमाउंट ऑफ डिले और इतना डिले तो हर कोई क्लिक करने के बाद वेट कर ही लेता है. तो पॉसिबल है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सके, तो मे बी वो दिखाया जाए और ना भी दिखाया जा सके. सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Conflict of interest जो है categorized by two things, which is subjectively and objectively. Like stakeholders may consider cost to be controlled, whereas the other may be more focused on the quality of the project. So subjective and objective are two things.
सब्जेक्टिव मीन्स कि जी के बेसिकली आप अपनी ज़रूरियात, अपने मराद को और अपनी सोच को सामने रख के कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सब्जेक्टिव होता है। वेयर एज ऑब्जेक्टिव चीज़ वो होती है जिसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहते हो तो उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड कहा जाता है। सो एक स्टॉक होल्डर जो है वो एक काम मे बी इसलिए ना कर रहा हो कि जी कि मे बी उसके अंदर उसके अपने सब्जेक्टिव कुछ हो, सोच हो, और ऑब्जेक्टिव बेस इस तरह हो सकता है जी कि कोई एक चीज़ जो है वो फुलफ़िल हो जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मे बी दूसरों के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह आ सकता है आप लोगों के बीच में, बीइंग अ स्टेक होल्डर। So let's check out the value conflict. Characterized by value stakeholder possesses, क्या वैल्यू है इनकी? मे बी ये वैल्यू कल्चर हो, एथनिक हो, कास्ट बेस्ड हो या पर्सनल आइडियोलॉजी हो जिसमें आप लोगों को स्टीरियोटाइप भी करते हैं। तो इस तरह चीज़ें हो सकती हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट आ सके। लाइक अ स्टेक होल्डर मे सपोर्ट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड अदर आर इन द फेवर ऑफ क्लोज सोर्स टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। एथनिसिटी की बेस पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, कल्चर की बेस पे आ सकते हैं कि जी के यहाँ पे लेट सपोज प्रोजेक्ट के बीच में हम पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल करें कि पश्तो का वर्ड इस्तेमाल करें कि सिंधी का वर्ड इस्तेमाल करें, या मे बी ऐसा हो सकता है कि जी के कलर की बात आ जाए, कास्ट की बात आ जाए, कोई पर्सनल आइडियोलॉजी आ जाए कि नहीं जी यहाँ तो हम लेट सपोज हदीस डाल देंगे। तो पर्सनल आइडियोलॉजी में भी उसमें बाकी जो हों वो आपके साथ जो हैं वो ईसाई हों तो वो कहें जी ये चीज़ ऐसे मुमकिन नहीं हो सकती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यू होती हैं। रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो करेक्टराइज्ड अमंग स्टेक होल्डर्स बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्टीरियोटाइपिकल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, deficient communication, negative interpersonal behavior, false information, different interpretation of some information, usually arise between stakeholders of equal ranks, enforcing these requirements on project and rejecting others. So आपके पास रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों का या तो दूसरे मिलते ना हो, उस से प्रॉब्लम आ सकती है। स्टीरियोटाइपिकल रिलेशनशिप होते हैं, इस तरह आप लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं जी ये तो बीएस है, ये तो जी जाहिल है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, हम तो डॉक्टर्स हैं, हम पीएचडी कर बैठे हैं। इस तरह चीज़ें भी होती हैं। कुछ डेफिशिएंट कम्युनिकेशन की बात हुई पहले कि जी आपस में बातचीत ना हो तो लोग समझते हैं जी तुम क्यों बता रहे हो, तुम तो बोलते ही नहीं हो, इस तरह की बात आ जाती है। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन भी हो सकती है बेस ऑफ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कि जी के लोग आपस में बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं तो उनकी आपस में बहुत चीज़ों के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो जाती है जी कि तुम इस चीज़ के बारे में ऐसे सोचते हो, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। तो उस बेस पे भी रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के आपस में बन सकते हैं। सो नेक्स्ट आर द स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। दे आर कैटेगराइज्ड अमंग स्टेक होल्डर्स बाय अनइक्वल लेवल ऑफ अथॉरिटी या पावर। This type of structural conflicts may arise because between an employee and his superior if the superior rejects his requirements, because he thinks he does not recognize the employee's competence to delineate the requirements, to basically elicit the requirements, और उसको बेहतर सही तरह समझता नहीं है। तो ये पावर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, और इसमें मे बी जो रियल यूज़र हो, जो लिखवा रहा हो उस रिक्वायरमेंट्स को, वो उसको बेहतर डिफाइन कर रहा हो, लेकिन क्योंकि अथॉरिटी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया जी कि ऐसे नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। सो दे आर रीजंस ऑफ मिक्स रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। इनको डिफ़िकल्ट होता है कैटेगराइज करना। तो किस तरह इनको कैटेगराइज करवाएंगे या करेक्टराइज करवाएंगे, मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट विद क्लियर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सिमिलरली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यू एज वेल, जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जी कि ये तो लेट सपोज के अंडर ग्रेड है या मास्टर्स नहीं है, या इसका तो 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट वैल्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। It is advisable to analyze and identify conflicts with respect to all types so that all possible reasons for the conflict can be determined and resolved. तो इनको रिजॉल्व करना एक तरह से एनालिसिस में ये भी होता है जी कि मे बी अगर इसमें इस तरह के लोग हों जो कि आपस में एक दूसरे को पसंद ना करते हो, तो आप लोग उन ग्रुप्स में से उन लोगों को निकाल दें या नए लोग उन ग्रुप्स में ऐड कर लें, या जब आप लोग रिक्वायरमेंट्स को
गैदर कर रहे हो तो फिर आप लोग उन 2-3 लोगों को साथ बिठाएं ना। अगर वो बैठें तो पहले आप उनसे चीज़ें क्या कहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर निगोशिएट करके आएँ, ताकि जब वो कॉन्फ्लिक्ट जब आके वो रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन में बैठें तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर का जो बेसिक इंपॉर्टेंट काम है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। तो गुड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ अ सक्सेस फैक्टर। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेते हैं तो सक्सेस आपकी है। कॉन्फ्लिक्ट negotiations आर important बिकॉज strategies to neutralize conflicts help in working together। तो जब आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं कि जी के निगोशिएट करवा सकते हैं, तो बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि जी के वर्किंग टुगेदर का जो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी, वो अच्छी बात है। मिल बैठ के काम करना वो आप लोग प्रॉमिस कर सकते हैं। If not resolved, may have negative impact in collaboration of the project. If an understandability can be reached where all stakeholders consider it as a fair means that everyone idea will be implemented in a project, it's a good thing. It's a win-win situation. The involvement of the relevant stakeholders. So all the relevant stakeholders has to be present to identify requirement specification. Else, in later stages, if anyone objects that he was not consulted, may lead to a conflict again, which require further effort and may be resolved in parts or incompletely, जिसमें आप लोगों के लिए आगे problems create हो सकते हैं। तो let's talk about the conflict resolution techniques। हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास 8 techniques हैं। Let's talk about these 8 techniques। So here you can see we have 8 techniques to resolve the conflicts। So let's talk about the first technique, which is agreement। So in agreement, all conflict parties negotiate a solution to the conflict। आपने किसी एक solution पे आना होता है और being software engineer solution आप लोग provide करते हैं। The parties try to convince one another by exchanging information, argument, opinion। ये चीज़ें की जाती हैं ताकि आप किसी एक resolution की तरफ आ सके। Compromise in other part, all conflict parties try to find a compromise between alternate solutions। तो alternate solutions आप provide करेंगे उनको, और उनको उनके साथ उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को एडवांटेज बता दिए जाएंगे जी कि ये इस तरह अच्छा था, अगर आप लोग इस चीज़ पे नहीं मान रहे तो दिस इज़ द alternate। और ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ है कि अगर आप लोग अपना नहीं करवाना चाहते और दूसरे की भी सुनना चाहते तो फिर हम इसको इस तरह सॉल्व करवाएंगे, इस तरह हम इसको डेवलप करेंगे। A compromise consists of a merger of different parts of the alternate solution। तो merger किया जाता है, कुछ उनकी सुन ली, कुछ आपकी सुन ली, कुछ आपके पार्ट रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया और कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमने टेलर करके आल्टर करके इस तरह हम लोग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो इट ऑल्सो मीन्स दैट द alternate solutions which are proposed till now are discarded and entirely new solutions are creatively developed। तो वो चीज़ें आप लोगों को छोड़नी पड़ेंगी, और जो पहले डेवलप हुई, जो आप लोगों ने सोल्यूशंस दिए, लेट सपोज एक पार्टी ने सोल्यूशन दिया, दूसरी पार्टी ने सोल्यूशन अल्टरनेट सोल्यूशन दिया, उनको हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग एक नए सोल्यूशन की तरफ आएंगे जो कि टोटली डिफरेंट होगा, और डेवलपमेंट में आप लोगों के लिए फिर आगे लेके उसको चलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, विच इज़ वोटिंग। सो हेयर ऑल कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज वोट ऑन अल्टरनेट सोल्यूशन। यहाँ वोटिंग कर ली जाती है, अल्टरनेट्स दिए जाते हैं और स्टेक होल्डर्स को। Each stakeholder cast vote for an alternate and the alternative with the most votes is accepted as the resolution of for the conflict। तो जो आप लोगों ने alternate दिया होता है उसके ऊपर आप लोग वोट करवा देते हैं। अगर उस पर ज़्यादा वोटिंग हो गई, ज़्यादा हाथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बाकी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो। So there is another one which is called definition of variant। Now definition of variant is a थोड़ा सा complex process है। Here the system is developed in a way that permits a definition of variants। तो हमारे पास variants भी होने चाहिए। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, we give them at least 2-3 type of solutions कि जी ये देखें इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इस चीज़ को इससे इम्प्लीमेंट किया था और ये इस तरह चल रहा है, या एक और सिस्टम जिसमें हमने इस चीज़ को इससे इम्प्लीमेंट किया गया और इस तरह चल रहा है। तो बाय डिराइविंग वेरिएंट्स बाय सिलेक्टिंग पैरामीटर्स दैट डिफाइन सिस्टम वेरिएंट्स। तो इस तरह के पैरामीटर्स भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो कि वेरिएंट हों, डिफरेंट हों, मुख्तलिफ चीज़ दिखाई जाए। बाय सिलेक्टिंग वेरिएबल सिस्टम प्रॉपर्टीज़, तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके कुछ ना कुछ दिखा दिया जाए। तो इस तरह फिर आप लोग वेरिएंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसके ऊपर 3 चीज़ें डिफाइन की आपने वेरिएंट्स के ऊपर, पैरामीटर्स हो गए या सिस्टम प्रॉपर्टीज़ हो गई। दिस वे द सिस्टम कैन सेटिस्फाई द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो इस तरह आप लोगों के जो स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। तो आप वेरिएंट्स दिखाते हैं जी के लेट सपोज अगर आप कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो
फ़लाँ चीज़ नहीं शो करनी, तो हम उसकी जगह अगर इस तरह शो करवा दें तो मे बी लेट सपोज़ के एक सीईओ कहता है जी कि लेट सपोज हमने पेमेंट्स नहीं शो, हमने पे नहीं शो करनी कि हमें कितनी पे हो रही है, तो हम ये बता सकते हैं जी कि वेरिएंट में आप लोग उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज उठा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं जी कि ही इज़ बीइंग पेड लाइक अबव मिलियन, या 5 फिगर पे पी की जाती है इसको, समथिंग लाइक दैट, इस तरह लिखा जा सकता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक में हमारे पास जो पांचवी आ रही है दैट इज कॉल्ड ओवर रूलिंग। लेट्स टॉक अबाउट ओवर रूलिंग। A conflict resolved by means of the organization hierarchy। तो hierarchy देखी जाती है, hierarchy में जो organization में उनका order है उसको फिर हम लोग देखते हैं, और ताकि resolve करवा सकें conflicts को। Organizational rank or position wins the conflict by overruling objections of organizational lower parties। तो जो आपके मुतहत होते हैं उनको आप लोग फिर अपने उनके बॉसेस के थ्रू जो उनके ऑब्जेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। If both parties have same rank, the conflict is resolved by a superior stakeholder or some third party decide about the conflict, how it can be resolved. So we have another techniques called consider all facts. So consider all facts is very important. The reason for conflict is investigated. इसमें आप investigation करेंगे and information is collected. This information is used during resolution, और वो information आपको help करती है। वो जो चीज़ें आपने investigate की हैं वो किस तरह चीज़ें होती हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। By prioritizing the influencing factor that are relevant to be determined। तो उनकी रेलेवेंस देखी जाती है कि जी वो इस पार्ट पे कितनी रेलेवेंट है, जिसको जो हम लोग को इन्वेस्टिगेट किया इन्फॉर्मेशन कि जी के इस जगह पे या इस इंटरफेस पे वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, इस तरह चीज़ें। दिस टेक्निक ऑल्सो हेल्प इन माइनस प्लस इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है PMI प्लस माइनस इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक में भी हमारे पास कंसिडर ऑल फैक्ट्स जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन की होती है हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट प्लस माइनस टेक्निक। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ सोल्यूशन आर इन्वेस्टिगेटेड। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। जो पॉजिटिव आउटकम्स जो आप लोग समझते हैं जी कि आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को कवर अप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको पॉजिटिव लिस्ट में डाल देते हैं। और दूसरों को जो आप समझते हैं जी कि इतने ख़ास नहीं हैं, इतने जो हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है, तो उनको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाता है। और सिमिलरली कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि आप यू कांट फाइंड आउट कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप उनको इंटरेस्टिंग लिस्ट में डाल देते हैं। एक लिस्ट में 3 चीज़ें होती हैं जिसमें आपके पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है। और जो इंटरेस्टिंग होते हैं दे आर लेटर इवेल्युएटेड द डिटर्मिन इन्फ्लुएंस एज पॉजिटिव नेगेटिव। उनको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देखा जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उनको फिर उस तरह नेगेटिव पॉजिटिव में आखिर में ही नेगेटिव पॉजिटिव में ही डालना होता है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिसीजन मैट्रिक्स। तो हमारे पास डिसीजन मैट्रिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस टेक्निक कैन बी यूज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अ टेबल कंटेन्स सोल्यूशन अल्टरनेट्स इन द कॉलम। तो हमारे पास सोल्यूशन के अल्टरनेट जो होते हैं वो कॉलम में रखे जाते हैं। और ऑल रेलिवेंट डिसीजन क्राइटेरियाज इन द रोज। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है जिनकी बेस के ऊपर आप उन सोल्यूशंस को देख रहे होते हैं वो आप लोग रोज़ में रख लेते हैं। और जितने भी आप लोगों के सोल्यूशन के अगेंस्ट जो भी आप समझते हैं जी कि यू फील लाइक जी के पॉइंट्स हैं जो आप देना चाहते हैं, स्केल एक होता है जो कि 0 से लेकर 10 के बीच में होता है, आप उनको स्केल दे देते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन द सम ऑफ द कॉलम्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग देम। उनको हम ऐड कर लेते हैं और देखते हैं जी कि हमारे पास सम किसका ज़्यादा आ रहा है। तो जिसका सम ज़्यादा होता है हमारे पास, तो वो हम लोग देख लेते हैं, वो सोल्यूशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सी इन दिस एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे 18 है, और हमारे पास 18 है, और 18 जो है वो पहला सोल्यूशन हमारे पास। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन जो कि आपके पास कॉलम में रखे जाते हैं, और ये आपके पास क्राइटेरिया है। इन क्राइटेरिया को सोल्यूशन के बेस के ऊपर आप लोग वैल्यू दे देते हैं, और वो वैल्यूज़ आपने 3 अल्टरनेट रखे हुए हैं, तो वैल्यूज़ जिनकी जहाँ पे ज़्यादा वेटेज होती है ये बेसिकली मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जी कि जिनकी बेस के ऊपर जो चीज़ आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस के ऊपर आप लोग चीज़ों को वैल्यू दे सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये मैट्रिक्स पे की वैल्यूज़ दी जाती हैं और फिर आखिर में कैलकुलेट किया जाता है, जिसका सम ज़्यादा आता है वो सोल्यूशन आप लोगों का विन कर जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स चेक आउट दिस समरी कि हमारे पास एक समरी है, उसमें हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो उस पर किस तरह काम करते हैं। तो वी गॉट एग्रीमेंट, we had a compromise, we used voting, definition of variance,
overruling consider all facts, और यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेट किया था, ये फिर हम लोगों ने प्लस माइनस इंटरेस्टिंग में भी इस्तेमाल किया। डिसीजन मैट्रिक्स हमारे पास थी, ऑफन नेम एज बेनिफिट वैल्यू एनालिसिस, इसको हम लोग बेनिफिट वैल्यू एनालिसिस भी बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसको क्या डॉक्यूमेंट भी करना है? यस, वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट, ताकि हम इसकी रिस्क एनालिसिस कर सकें। रिस्क ऑफ मिसिंग कॉन्फ्लिक्ट डॉक्यूमेंटेशन, देयर आर सम रिस्क, अगर आप इफ़ यू डोंट डॉक्यूमेंट देम और ये मिस हो जाएंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से, तो फिर देयर आर सम रिस्क। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें पता है ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग। इफ़ अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज नॉट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड द फॉलोइंग थ्रेट्स टू द प्रोजेक्ट मे अराइज। तो कुछ थ्रेट्स हैं, वो देख लें कौन से हैं हमारे पास। वन है जी हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीटेडली, तो आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपीटिशन आ सकती है, रिपीट आएगी बार बार, वो प्रॉब्लम्स फिर खड़े हो जाएंगे। अ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट कैन राइज अ सेकंड टाइम ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। A conflict must be analyzed and resolved again, तो लाजमी है दोबारा रिजॉल्व करना पड़ जाएगा। This cause additional effort and can potentially lead to additional conflicts और एब्रोगेट प्रीवियस सॉल्यूशंस, तो आप लोगों के जो प्रीवियस सॉल्यूशंस हैं उनको भी ये चौपटाइज कर सकता है कि जो आप, तो इसमें जिस तरह पहले बताया गया था जी कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उनको हम लोग साइक सिग्नेचर कराते हैं कि हाँ जी हम इस रिक्वायरमेंट्स को मानते हैं और हम इसको इस तरह लेके चलेंगे प्रोजेक्ट को आगे। तो आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व कर दिए। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट के जी के क्या वो इनअप्रोप्रिएट भी हो सकते हैं? हाँ जी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। The resolution of a conflict can turn out to be wrong or unsuitable, which lead to a new investigation of conflicts. So what need to be done then? Reinvestigation या new investigation करना. Conflict documentation should show information that was considered during the initial analysis. If documentation is overlooked, the new conflict resolution can lead to false solutions. तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स दोबारा उठ सकते, क्योंकि आप लोगों को इनिशियली राइट डाउन नहीं किया होगा, उस पर एनालिसिस नहीं किए होंगे, तो फिर वो आप लोगों के लिए अगेन एक नया कॉन्फ्लिक्ट बन के आ जाएगा एंड देन यू नीड टू रिजॉल्व इट अगेन। तो इन बोथ केसेस ए एंड बी, डॉक्यूमेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन सपोर्ट्स द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस and ensure that relevant information already known can be considered। तो जो आप लोगों ने एनालिसिस किए होते हैं उसकी बेस के ऊपर आप लोग जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत रेलिवेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डॉक्यूमेंट किया जाए, और उसकी बेस के ऊपर अगर कल को आप चले जाएं और कोई और बंदा आपकी जगह असाइन हो, तो वो ही शुड अंडरस्टैंड, ही शुड रीड कि जी कॉन्फ्लिक्ट आया कहाँ पे था, उसकी क्या एनालिसिस थे, उसके रीज़न क्या थे इनिशियल, और उसकी बेस पे फिर वो दोबारा से उसको रिजॉल्व करवा सके। So this is now for conflict validation and negotiations. So thank you very much for watching the lecture. Stay home, stay safe. Hopefully I'll see you soon inshallah. Take care. Bye bye.